پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، اداروں کے خلاف وہ کانٹینٹ وہاں سے اس کو وائرل کیا جا رہا تھا. اب اس شخص نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا ہے کہ موسٹلی جو اس کو مواد آ رہا تھا وہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے تھا. ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، یہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو کمزور کرنا چاہتی ہے، اور یہ ایک سازش ہے جس کے تحت یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. اہم حقائق کے بارے میں قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز کرنے والا شخص گرفتار. ملزم کے تانے بانے بھارت سے ملتے تھے. سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے ملک مخالف مہم چلائی گئی. اس کی ادائیگیاں بھارت سے ہو رہی تھی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر کے اندر امن و امان کی صورتحال پیدا نہ ہو. گرفتار شخص سے تحقیقات کے بعد تمام معلومات تک رسائی ملی. مس انفارمیشن کے پورے نیٹ ورک کا تعلق بھارت سے ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر پوری قوم کو جواب دہ ہیں. پاکستان کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا. آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں کون مارے گا میدان دنگل سجنے کو تیار. انتخابی مہم کا وقت اب ختم. میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں انتخابات کل ہوں گے. 6 لاکھ سے زائد افراد ووٹ ڈالیں گے. LA 3, 6 اور 10 میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون IPP کے امیدوار مد مقابل. میرپور کے 1235 پولنگ اسٹیشنز میں سے 478 حساس ترین قرار. حکومت کا میرپور ڈویژن میں کل عام تعطیل کا اعلان. آزاد کشمیر میں انتخابی ماحول عروج پر ہے. چیف سیکرٹری آزاد جموں و کشمیر خوشحال خان کی پریس کانفرنس. کہا کہ کارنر میٹنگز، بینرز، پوسٹرز اور سیاسی جماعتوں کے پرچم نمایاں ہیں. وفاقی سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی انتخابی مہم کے لیے آزاد کشمیر میں موجود ہے. انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے 17,000 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے. چاروں صوبوں کی پولیس آزاد کشمیر پولیس کے ہمراہ انتخابی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے گی. میرپور والوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے. میں موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے ایک آزاد، سچ اور مفاہمت کمیشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں. ایسا کمیشن جو فوراً اس بحران اور ٹکراؤ کا خاتمہ کرے، کشمیری عوام کو ان کی روزمرہ مشکلات سے نجات دلائے اور زندگی کو معمول پر واپس لائے. میرپور والوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ویڈیو بیان. کہا کہ سچ، انصاف، امن اور مفاہمت کے لیے 27 جولائی کو کشمیری تیر پر مہر لگائیں. موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے سچ اور مفاہمت کے مشن کا مطالبہ کرتا رہا ہوں. کشمیریوں کو روزمرہ کی مشکلات سے نجات حاصل ہو. کشمیریوں کی ہر شکایت سنی جائے. ہر متاثر ہونے والے خاندان کے لیے انصاف چاہتا ہوں. میری تجویز کا اب تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا. وفاقی حکومت واضح کرے کہ کیا خواجہ آصف کا بیان حکومتی پالیسی ہے. نون لیگ کی پوری لیڈرشپ کو کشمیر کے حوالے سے بیان پر معافی مانگنی چاہیے. آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کی میڈیا ٹاک. کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ اور نون لیگ کو شکست دیں گے. وفاقی وزراء نے پوری انتخابی مہم کے دوران کشمیر میں ڈیرے ڈالے. کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے. جب میرپور میں کشمیر کا اصلی بیٹا گیا، کشمیر کی اصلی بیٹی گئی، تو میرپور نے فیصلہ سنا دیا کہ آزاد کشمیر میں کشمیر کی خدمت کے لیے، آزاد کشمیر کی خدمت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی ہے.
कश्मीर इंतखाबात में जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुजफ्फराबाद मीरपुर की खवातीन ने फैसला सुना दिया कि जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। खवातीन का जोशो जज्बा देखकर खुशी हुई। सियासी मुखालिफिन आजाद कश्मीर के इंतखाबात में पैसे लगा रहे हैं। मुखालिफिन की तनकीद अब चीखों में बदल गई। अवाम की खिदमत करने के लिए नीयत की जरूरत है। वजीर आजम फील्ड मार्शल का खित्ते में क़याम अमन के लिए अहम किरदार है। खित्ते में जंग के भड़कते शोले थम गए। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अमरीकी सदर ने अफवाज को 1 रोज के लिए ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्तों से जारी हमलों का सिलसिला रुक गया। ओमान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप ने सफारतकारी को मजीद मौका देने का फैसला किया। ट्रंप दोबारा हुक्म दें तो फौज मुख्तसर नोटिस पर कार्रवाई कर सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने मुतालबात पूरे न होने पर जंग दोबारा शुरू होने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन अपने अहदाफ पर समझौता नहीं करेगा। मकासद हासिल न हुए तो दोबारा हमला करेंगे। अरब इत्तेहादियों की दूरी, हथियारों में कमी। अमेरिका का ईरान पर हमलों से आर्जी गुरेज का फैसला। अमेरिकी नायब सदर और अस्करी हुकाम के ईरान पर हमलों के मुतालिक खदशात सामने आ गए। CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई बढ़ाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। जनरल जैन केरी ने अमेरिकी असलहे के ज़खायर में कमी और मुमकिना नताइज से अमेरिकी सदर को आगाह कर दिया। ट्रंप ने मुमकिना फौजी कार्रवाई पर गौर के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। अमेरिकी हथियारों के ज़खायर पहले ही दबाव का शिकार हैं। अमेरिका ने 2 हफ्तों की मुसलसल बमबारी के बाद ईरान पर हमले रोक दिए हैं। अमेरिकी महकमा दिफा ने कहा कि ईरान पर कार्रवाइयां होल्ड पर हैं। ईरान ने भी जवाबी हमले रोकने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिका ने हमले रोके तो हमने भी जवाबी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी। अमेरिका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। इसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ये बात ट्रंप के फैसलों और सेंटकॉम की कारकर्दगी में देखी जा सकती है। अमेरिका अपना हुर्मुज़ और ईरान को कमजोर करने के मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन अब नई हिकमत अमली की तलाश में है। मफाहमती याददाश्त के बाद 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हुए। ईरानी पासदारानी इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मुहब्बी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि अमरीकी हलाकतों से मुताल्लिक वाशिंगटन के आदाद-ओ-शुमार सरासर झूठ हैं। जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 200 से कई ज्यादा है। ईरानी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। एक मुकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स तबाह हुए। अमरीकी हुकूमत को सहाफियों को तबाह होने वाले अमरीकी फौजी मराकज़ का दौरा करवाना चाहिए ताकि वो खुद अंदाजा लगाएं कि कितने अमरीकी फौजी मारे गए। ईरान की बरतानिया समेत अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को सख्त वार्निंग। अगर बरतानिया जंग में अमरीका की हिमायत करता है तो वो जायज हदफ होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने बरतानिया को खबरदार कर दिया। कहा कि जो जंग में अमरीका की हिमायत करेगा वो हमारा आसान हदफ होगा। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले बरतानवी अड्डे जायज अस्करी हदफ हो सकते हैं। बरतानिया हुकाम ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क और अपने मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी हमले जंगी जराइम जिम्मेदारों का आलमी सतह पर एहतसाब होना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि आला सतह के इजलास में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों का मामला आलमी फोरम्स पर उठाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जिम्मेदारों का एहतसाब यकीनी बनाया जाए। पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन को फ़रोग़ देना हुकूमत की अहम तरजीह है।
मशरिक़ वस्ता में नया जंगी बहार, सऊदी फौजी इत्तेहाद और यमन का हौज़ी ग्रुप आमने सामने। यमनी हौज़ियों ने सऊदी शहर यनबा और जासान में आरामको तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। तर्जुमान हौज़ी अंसारुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि हमलों में आरामको तंसीबात को निशाना बनाने के लिए दर्जनों क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमारा फौजी ऑपरेशन कामयाब रहा, तमाम मुतलूबा अहदाफ को निशाना बनाया गया। अगर सऊदी अरब ने मजीद मुहासरा खत्म ना किया तो वो मिसाइल हमले जारी रखेंगे। बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रहेगी, जबकि सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी से होगा। सऊदी हुकाम ने कहा कि तमाम हमलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए से कामयाबी से नाकाम बनाया गया है। ईरान का सऊदी यमन तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक यमन तनाज़े का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कलिकंद, उमरानी, कडकोचा, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितना हिंदुस्तान को नुकसान का सामना। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीनगाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन अल अज़म में अब तक 16 दहशतगर्द मारे गए। अगले 11 या 12 माह में आप बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल होते देखेंगे। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चुरुंगी अंडरपास का इफ्तिताह। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लोग शोशे छोड़ते हैं लेकिन सिंध तकसीम नहीं होगा। दीगर सूबों को अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मिले, क्या कराची का कोई हक नहीं? वफाकी हुकूमत कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लाती। MQM हमेशा वफाक का हिस्सा रही, सिर्फ पीपल्स पार्टी कराची में काम करवाती आई है। मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के 71वीं सालगिरह मनाई जा रही है। MNA डॉक्टर शर्मिला फारूकी बोली, सदर आसिफ अली जरदारी की जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, पार्लिमानी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए खिदमत है। मुश्किल वक्त में सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का तारीखी नारा बुलंद किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सदर जरदारी की अवाम जमहूरियत के लिए खिदमत काबिल कदर हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी एक मुदब्बिर, दूर अंदेश, बाउसूल सियासी शख्सियत हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद एहसन यूनुस ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जिम्मेदारियों, ऑपरेशनल सलाहियतों और अहम कामयाबियों से आगाह किया है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से करीबी ताउन पर ब्रीफिंग। अमरीकी कांग्रेसी वफ्द का दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग का तसलसल है। लाहौर, सिंध समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। PDMA के मुताबिक मुल्क के बेशतर अजला में 27 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 27 जुलाई तक जारी रहेगा। नशाबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान लाहौर में 37, मंगला में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, अटक, मरी, बहावलपुर में बारिश रिकॉर्ड की गई।
पाकिस्तान भर में जारी बारिशों के बायस छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 97 अफराद जान की बाजी हार चुके। लाहौर गढ़ी शाहू में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक। गुजरात में छत गिरने से 3 भाई बहन दम तोड़ गए। 15 साला अली, 14 साला ईमान, 13 साला फलक शेर शामिल। कसूर में छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद चल बसे। भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। नई दिल्ली में जारी एहतजाज से भारतीय शहरी का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के नाम वीडियो पैगाम। कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा है। पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस में मोदी को तारीखी शिकस्त दी। एहतजाज में शरीक शहरियों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे लगाए। और कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। तर्जुमान सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। हम तमाम मुजाहिरीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को खत्म कर दें। पर्चा लीक होने के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के अहल खानों को मुआवजा दिया जाएगा। कारकुनों के खिलाफ मुल्क भर में तमाम दर्ज FIR वापस ली जाए।